the BJP now hitting out at the Aam Aadmi Party, also intensifying the war between the Aam Aadmi Party and the BJP in Delhi, saying that it is in fact the lack of the governance that has been observed in the national capital which has led to the collective crisis brimming in the national capital. Joining me now on the broadcast is Congress leader Sandeep Dixit, who has been one of the few first leaders who have reacted from the Congress on the Arvind Kejriwal's announcement of resignation. And at this given point of time, I appreciate you, sir, joining me on the broadcast. Mr. Dixit, thank you for speaking to NewsX. My first question to you would be that Arvind Kejriwal has claimed that he will resign from the post of the Chief Minister after these 2 days. After he was granted the bail. So the timing in itself has been also questioned a lot, because, you know, after he was granted bail, he has now come out in the first party address to all the cadre and the supporters that he is going to resign. So what kind of a message do you think, you know, this signals out, and how important do you think this must have created an impact as far as the supporters in the party strengthening is concerned? सब मैंडेट तो जब मैंडेट है ही 5-6 महीने में, तो मैंडेट मांगेंगे, इसमें नई बात क्या है। सवाल तो ये बनता है कि 6 महीने पहले जब आप जेल गए थे तब आपने क्यों नहीं इस्तीफा दिया, आज तक आप सफाई क्यों नहीं दे पाए हैं पूरे अपने घोटाले की, और इतने दिन से अब दिल्ली बद से बर्बाद होती चली जा रही थी, और 6 महीने में नहीं पिछले 2-3 साल से हो रही है। हर कोने में आप देखिए, जो दिल्ली विकास के लिए जानी जाती थी आज विनाश का एक नमूना बन गई है इस पूरे देश के लिए। उस दिल्ली के लिए आप क्या कर रहे हैं? रोज आप रोते हैं, रोज आप चिल्लाते हैं। आप ही थे जिन्होंने हर किसी व्यक्ति पर उंगली उठाई थी इस देश में। आपके पास मतलब तिल बराबर सबूत नहीं था, और आप बड़ी बड़ी फाइलें लोगों के खिलाफ लिए घूमते थे, और क्या आप समझ लीजिए घटिया से घटिया शब्दों का इस्तेमाल करते थे लोगों के बारे में। आज आप पर पड़ी, सबूत के साथ पड़ी, तो फिर इतने विचलित हो गए आप। इन्होंने एक चीज जरूर दिखाई है कि जितनी साफकोशी से, जितनी सफाई से ये आए थे, शायद उससे ज्यादा काले काज इनके चेहरे पे लग चुकी है। Mr. Dixit, your party was also talking about an alliance with Kejriwal's party in Haryana, and right now this announcement has come, and we have seen that there has been no stone unturned from the Congress in hitting out at the Aam Aadmi Party Kejriwal while his decision regarding the announcement or the resignation is concerned. So what exactly is the impact of, you know, this decision in Haryana that's going to be? देखिए, हरियाणा में तो कोई ज्यादा असर होने नहीं वाला है। देखिए, हरियाणा में इनके पास आधा % वोट पिछली बार था, बहुत कूदेंगे थोड़ा बढ़ जाएगा, मेरे हिसाब से तो कम होगा। लेकिन अब इनका क्या है भाई, इन्होंने कुछ डील की होगी जिस कारण से बेल मिला है। हमको तो ये पहले से पता चल रहा था कि उस डील में हरियाणा की 90 सीटें लड़ने की बात थी, तो ये लड़ेंगे। अब क्या लड़ पाते हैं, क्या नहीं लड़ पाते हैं, क्या कांग्रेस को कमजोर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो हरियाणा इलेक्शन में अब बहुत देर हो चुकी है इन लोगों के लिए। हरियाणा में हम लोग बहुत अच्छी सीटों से, बहुत बड़े बहुमत से आने वाले हैं, और इनकी पोल उसके बाद खुल जाएगी। All right, as you said that in the Haryana elections, it is going to be very clear, and it is going to be concrete as to what is exactly the party that's running and that's controlling the people in Haryana. Now, the Supreme Court has also taken a very strict stand while granting bail to Kejriwal, such as he cannot go to his office nor he can sign any file. What do you have to say to these conditions, and also if you think that there is indeed this defense or the coping strategy that has been adopted by Kejriwal to run away from the conditions that have been put forward by the apex court? नहीं, दिल्ली की जनता पे क्या बने ये तो मैं नहीं जानता हूं। दिल्ली की जनता को ये बहुत दिनों से उल्टी सीधी चीजों से बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टेटमेंट है? सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट है उसने साफ तौर पर इनको निकम्मा जाहिर किया है। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन जी को भी बेल दी, उन पे तो कंडीशन नहीं उठाई। इसके लिए कंडीशन इसलिए उठाई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को शक है कि अगर ये फाइलें देखने लगे, अगर ये दफ्तर जाने लगे, तो ये डराए धमकाएंगे, अपने खिलाफ सबूतों को मिटा देंगे, न जाने कौन सी नई डील कर लेंगे। आज एक शराब घोटाला है, कम से कम 25-50 और कर लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से केजरीवाल के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस कहा है कि तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम फाइलें देख सको। भाई, मुझे ये बताइए, आप मुख्यमंत्री रह रहे हैं, ठीक है, तो आपको फाइलें क्यों नहीं देखने दिया जा रहा? मतलब कुछ शक है ना,
कुछ तरीका है ना भाई। आप मुझे एक चीज बताइए ना, अगर आप किसी व्यक्ति को अपने घर में आते हैं और घर के कुछ कमरों में नहीं घुसने देते हैं, तो ये मतलब ये दिखाता है कि उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में आपकी क्या सोच समझ है, कि आप इतना भी उसको समझते कि बाकी कमरों में घुस सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि ना केजरीवाल ऐसा आदमी है जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं और ना ये लायक है मुख्यमंत्री बनने के। Mr. Dikshit, Kejriwal has also talked about holding the elections with the Jharkhand and Maharashtra. Now asking for the centre to prepone it. What is the preparation for Congress in Delhi when we talk about the Delhi Assembly polls? देखिए, ऐसा है, डिमांड करना किसी भी मुख्यमंत्री का अधिकार है, लेकिन उसका एक तरीका होता है, पब्लिक में भाषण नहीं होते। अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि डिसॉल्व हो असेंबली और जल्दी चुनाव हो, तो उनको कैबिनेट में जाकर निर्णय लेना पड़ता है और एलजी के पास, जो हमारा एलजी है, उसके पास जाएं और कहें कि भंग करो, जल्दी चुनाव करो। भाषण क्या दे रहे हो भाई? हर चीज का एक तौर तरीका होता है। तो ये मुझे नहीं लगता कोई गंभीरता की बात है, इसमें कुछ पहले होगा बाद में होगा, कोई फर्क खास पड़ने वाला है नहीं। As you're saying, it's not going to impact a lot, but what do you think and who do you think Kejriwal is going to make the successor? And when we're talking about the post of the chief minister, who do you think is going to be taking his place next? ये कोई हस्ता का हस्तांतरण नहीं हो रहा है, ठीक है। आम आदमी पार्टी एक बिजनेस हाउस है, ये शेयर का हस्तांतरण हो रहा है, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि कोई सेवा के लिए आए हैं, मेवे के लिए आए हैं। तो शेयर पहले इनके पास थे, अब शेयर किसी नए के पास जाएंगे। तो ये ऐसे व्यक्ति को अपने शेयर बेचेंगे जिससे इनको मुनाफा होता रहे, इनकी फाइलें दबी रहें, इनके सीक्रेट दबे रहें। उसी ऐसे व्यक्ति जब मिल जाएगा तो नया मुख्यमंत्री बन जाएगा। All right. The kind of justification that has been given at this point of time for the name of the front runner for the CM post is in fact something to think over. Right now, the Congress, Mr. Dikshit, has also had an alliance with the Aam Aadmi Party at the one point. And what is likely to happen to that alliance? And this is a key India bloc ally which we are talking about, and at this given point of time the alliance of the Congress with the AAP was also being mulled in Haryana. So what is going to be the future of this friendly alliance that has happened in the past as well? नहीं, वो अलायंस नेशनल लेवल का था, लोकसभा के चुनाव का था, और उसके कुछ कारण थे। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति एक आलोचना का एक पूरा मसौदा तैयार किया था। उसमें इन लोगों ने देखा कि जो राहुल जी और लोग कह रहे हैं उससे ये लोग इत्तेफाक रखते हैं, इसलिए ये हमारे साथ आ पाए। हम जिस राह पे चलते थे, जिस तरीके से चलते थे, जिस मुस्तैदी से चलते थे, ये लोग उस कारवां में जुड़े और उस कारवां में सबका स्वागत है। वहां हमने देखा था कि देश को बर्बाद करने में, देश की व्यवस्था को खराब करने में सबसे बड़े दोषी हम प्रधानमंत्री को पाते थे। दिल्ली में अगर हम आते हैं तो दिल्ली में दिल्ली को बर्बाद करने में, खराब करने में सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। जो देश में जो हालत और स्थिति नरेंद्र मोदी ने की है, दिल्ली की वही हालत और स्थिति केजरीवाल ने की है। तो मुझे तो यही है कि जिस तरीके से हमने नरेंद्र मोदी का मुकाबला किया, उसी तरीके से हम यहाँ केजरीवाल का करेंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.